So, in the previous session, we have discussed the many writers from British literature, and today we are going to discuss one of the greatest writers from Elizabethan period in British literature. Actually, so he is William Shakespeare. He was born on the year 1564, 23rd April 1564, and died on the same date, 23rd April 1616. So, he known for writing almost 37 and a half plays, out of his and he has written the four tragedies, which are the most famous tragedies considered in the whole world. And he has written 154 sonnets in total, out of which 126 sonnets is dedicated to two men. The first one, Wriothesley, second one, Herbert. Okay, and another 26 sonnet is dedicated to the Dark Lady, and the last two sonnets is dedicated to the god of love, that is Cupid. Okay, so as he is known for writing 154 sonnet, and his sonnets, that is came in 1609 by the man called Thomas Thorpe. He compiled the whole sonnets of William Shakespeare and gave it a new name. So you can go for compilation of 154 sonnets in total, which is also included in UGC NET syllabus. Okay, so today we are going to discuss the most important sonnet, that is sonnet number 18, written by William Shakespeare, and the title is Shall I Compare Thee to a Summer's Day? Shall I compare thee to a summer's day? So he is comparing his lover to a summer's day. Here he is metaphorically comparing his lover. So mark this statement, and we are gonna deal with this beautiful sonnet written by William Shakespeare with the help of our sir, as he has joined us. So, sir, starting line: Shall I compare thee to a summer's day? Thou art more lovely and more temperate. प्रथम जो पंक्ति है, इससे आप समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि कवि के मन में एक कंफ्यूजन है, और यह भी पता चल रहा है कि कवि अपने प्रेमिका के गुणों के कारण बहुत ही प्रभावित है, और उसके दिमाग में एक द्वंद्व है, एक कंफ्यूजन है। वही कहता है कि क्या मैं तुम्हारी मतलब प्रेमिका, क्या मैं तुम्हारी तुलना ग्रीष्मकालीन ऋतु से कर सकता हूं क्या? वो खुद श्योर नहीं है, लेकिन आगे आने वाली पंक्तियों में आप देखेंगे कि उसकी जो श्योरिटी है, उसने साबित कर दिया कि उसकी प्रेमिका ग्रीष्मकालीन ऋतु से बेहतर है। Thou art most lovely and more temperate. ऐ मेरी प्रेयसी, तुम ग्रीष्म से ज्यादा प्यारी, और टेम्परेट का मतलब सहिष्णुता से भरा हुआ, कांस्टेंट, काम, कुल हो, चंचल नहीं हो। तुम्हारे अंदर सार्वभौमिता है, पैरामाउंसी है। Rough winds do shake the darling words of May, and summer's liege hath all too short a date. रफ विंड्स डू शेक द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ, गर्मी को बोल रहा है कि तुम्हारे जो थपेड़े हैं, तुम्हारे जो अग्नि तुल्य जो थपेड़े हैं, तेरी हवाएं जो है, इस धरती, इस प्रकृति के उन तमाम चीजों को झकझोर कर मूर्छित करके रख देती है, जो काफी सुंदर है। तो तेरे अंदर करुणा नहीं है। Rough winds do shake the darling birds of May. Next. And summer's liege hath too short a date. और मैं यह भी देखता हूं, मैंने पाया कि समर्स लीज हाथ ऑल टू शॉर्ट ए डेट। ये जो गर्मी है, इसके अंदर जो इसका गुण दिया गया है, वो काफी निम्न समय के लिए है, लीज पर है। लीज का मतलब पट्टे पर है, ज्यादा दिन के लिए नहीं दिया गया, कुछ समय के लिए दिया गया कि तुम इस छोटे से समय में, इस निश्चित अवधि तक ही तुम अपने गुण को दर्शा सकते हो, चाहे तेरे अंदर कैसा भी गुण क्यों ना हो, निश्चित समय के लिए दर्शा सकते हो।
Sometime too hot the eye of heaven shines, and often is his gold complexion deemed. बहुत बढ़िया। तो इन्होंने कहा सम टाइम टू हॉट द आई ऑफ हेवेंस, इस आकाश रूपी चेहरे के बीच में ये जो सूर्य तेरी आंखें हैं, सूर्य के रूप में तेरी आंखें वो क्या करती है? और समटाइम्स टू हॉट द आई ऑफ हेवन साइंस, कभी तो इतना चमक है उसमें, एंड ऑफन इट इज गोल्ड कॉम्प्लेक्सन डिम, और कभी कभी तप्त, उसका जो तप्त तीव्रता उसके अंदर है, जो गर्मी है, जो जो तपिश है, वो कभी कभी क्या होता है, शाम ढलते ही धूमिल हो जाती है। मकसद क्या? मकसद पैरामाउंट सी नहीं है, कभी कुछ कभी कुछ। ओके, By chance or nature's changing course untrimmed. आई थिंक एक लाइन छूट गया। Oh, sorry. And every fair from fair sometime declines. और आप समझ लीजिए कि इस संसार में सुंदर से सुंदर वस्तुएं भी, देखिए कितना अच्छा लाइन है, एवरी फेयर फ्रॉम फेयर, सुंदर Sometime से भी declines. ऊपर, बिल्कुल। सुंदर के ऊपर भी ऊपर, उसका कोई अंत नहीं है। वो भी क्या होता है, एक समय में आके वो धूमिल हो जाती है, पतित हो जाता है। By chance or nature's changing course untrimmed. और इस प्राकृतिक का जो पंजा है, उसने जो तुम्हें प्रदान किया है, वो अनट्रिम्ड है, वो व्यथित है, अव्यवस्थित है, उसमें सुंदरता और अनुशासन नहीं है। But thy eternal summer shall not fade. The most important line. You must mark this in your mind. Most important. बट दाई इंटरनल समर शैल नॉट फेड, लेकिन आपके अंदर जो तीव्रता है, जो गर्मी रूपी खूबसूरती है, वो समाप्त होने वाली नहीं है, वो कभी धूमिल नहीं हो सकती, वो कभी किसी की आंखों से ओझल नहीं हो सकती। उसका रंग, तुम्हारा जो रंग है, वो हमेशा एक ही तरह से बरकरार रहेगा। Nor lose possession of that fair thou owest. और तुम्हारे अंदर जो खूबसूरती तुमने जो ग्रहण किया है, तुम्हारे अंदर जो है, वो कभी भी अपना मालिकत जो है, या आपके पास जो है अधिकार, मालिक जैसा जो अधिकार जिसको आप रखते हो, पजेस करते हो, तुम्हारे अंदर जो मौजूद है, वो कभी हटने वाला नहीं है। वो जैसा तुम, जिस चीज के तुम मालिक हो, उसी चीज के तुम मालिक हमेशा रहोगे, उस चीज को तुमसे कोई छीन नहीं सकता। Nor shall death brag thou wanderest in his shade. वाह जी वाह, क्या बात है। और ना मृत्यु अपने तथा कथित क्रूर पंजों से तुम्हारी आत्मा को छीन नहीं सकती। क्यों? आगे लाइन, When in eternal lines to time thou growest. क्योंकि हमने इन पंक्तियों में जो आपके गुण का बखान किया है, वो पंक्तियां हमेशा मौजूद रहेगी, गर्मी की तरह कुछ दिनों के लिए नहीं। लोग पढ़ेंगे, लोग समझेंगे, लोग प्रशंसा करते रहेंगे, ये कभी रुकने वाली नहीं है। इसका प्रासंगिक जो विवरण है, वो हमेशा के लिए अजर है, अमर है। So as we are familiar with the writer William Shakespeare, and he is using here that is called close couplet, which was introduced by Volner and another writer like Alexander Pope also. So here he has written this very beautiful line: so long as men can breathe or eyes can see, क्या बात। so long as men can breathe or eyes can see, so long lives this, and this gives light to thee. So long as man can breathe और eyes can see, जितने युगों युगों तक इंसान सांस लेते रहेंगे और अपनी आंखों की जो, आपकी जो दृष्टि है इन लाइनों पर पड़ती रहेगी, so long life this, तब तक ये जिंदा रहेगा तुम्हारी खूबसूरती, तब तक आपके गुण मौजूद रहेंगे। आप समझ लीजिए, जितना बार पढ़ेंगे, जितना आगे जाएगा, उतनी बार आपका जो, आपके अंदर जो गुण निहित है, वो मौजूद रहेंगे। मैं फिर कहता हूं, अजर है, अमर है, नश्वर नहीं। एंड दिस गिव्स लाइट टू दाई, और ये चीज
ये जो पढ़ने की जो प्रक्रिया जारी रहेगी, ये तुम्हारे जिंदगी को और आगे और खूबसूरत बढ़ाते रहेगी। बहुत ही खूबसूरत लाइन है। लोग देखिए, जैसे जैसे पढ़ेंगे तुम्हें अमरता प्राप्त होती चली जाएगी, है ना? This is the जैसे most जैसे beautiful पढ़ेंगे line. वैसे वैसे अमरत्व आपकी जो प्राप्ति है वो आपका बढ़ेगा। Now I have a good question for you guys that as we can see here in this beautiful sonnet कि विलियम शेक्सपियर किसी को डेडिकेट कर रहा है, डेडिकेटिंग ऑल दीज इंपॉर्टेंट लाइन टू हिज बिलवेड, यू कैन से, है ना, लवर, जो भी है डेडिकेट कर रहा है। नाउ आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। ये जो लवर है इसका, जिसको डियरेस्ट वन बताता है, समझ जैसे कंपेयर करना चाह रहा है, तो वो कौन है? वो कोई लड़की है, कोई डीलिंग विथ गे लिबरेशन लाइक थिंग, है ना? क्या है? आई वुड लव टू listen to your voice in the comment box below. Okay, so this was the sonnet and I think we are almost done with the sonnet line by line. जैसा इन्होंने कहा कि आप इसको पढ़ेंगे और समझेंगे, और कुछ कपोल कल्पित बातें हैं जो शेक्सपियर के बारे में कही गई है। जब आप उस स्तर तक पहुंचेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या शेक्सपियर अपनी प्रेमिका को, क्या कोई वह स्त्री है जैसा कि इन्होंने कहा, या फिर कोई गे है। This was also asked in the recently the UGC NET exam, and the same poem was given in the question, that is the last question in that particular exam. So we found that the question, this question that tell me the gender of the writer, tell me the gender of the poet. This was there. So तो आप इसको देखेंगे और मुझे काफी खुशी होगी अगर आप अपने कमेंट इसमें डालते हैं। और इस चीज को आपके सामने इसलिए रखा गया है कि ये चीजें जो हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा आपके सामने रोचक रूप से आप तक पहुंचे। आप इसमें इंटरेस्ट लें। इंटरेस्ट क्यों लें? मैं बता रहा हूं, बहुत ही खूबसूरत कृति है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत। कुछ जो लम्हे हमने बिताए अभी, कुछ क्षणों के लिए जो हमने व्याख्या की, आप 5 मिनट का समय दें, आपको समझ में आ जाएगा ये चीज क्या है, कैसे आकलन किया है इन्होंने, कैसे तुलना की है। तो वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, रादर गुजारिश है आप लोग से, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ये सब आप ही के लिए है। जय हिंद।